Hello students, class 6, chapter number 6, before the examinations, okay? Before the examinations, our class 7th, this chapter number is 6. Now, author of this chapter, before the examinations is R.K. Narayan. R.K. Narayan, his full name was Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayana Swami. He was born on 10th October 1906 and he died on 13th May 2001. He was the leading author of early Indian literature in English along with Mulk Raj Anand. Okay. Now, actually your story, this R.K. Narayan, this Rasipuram Krishna Swami Iyer, his full name was this, but he was popularly called as R.K. Narayan. R.K. Narayan's stories are mostly set in a fictional town, in a fictional South Indian town of Malgudi. Okay, your parents must have heard the stories of Malgudi days. वो TV में आता था Malgudi days, और हमने भी अपने childhood में we have also seen stories of Malgudi. The Malgudi is a fictional town in South India, and we have watched that stories. Mostly the stories are of a little boy, Swami. Okay, Swaminathan or Swami. Now this is a story, and the story of Swaminathan has been shown. Swaminathan is a school boy, his examinations are approaching, and what is the mental condition of him, his and his father, that has been depicted in this chapter. Okay, now we will read this chapter. Before the examination. In April, just 2 weeks before the examination, Swaminathan realized that his father was changing for the worse. He was becoming fussy and difficult. Okay, now I told you this thing, that this is a story of a boy, Swaminathan. This is a story about the examination. Okay, now 2 weeks before the exam, Swaminathan के exams लगने वाले थे, and before 2 weeks before the examination, तो Swaminathan realized करता है that his father was changing. His father was becoming more harsh, and every time Swaminathan realized this, उसके फादर ने एक माइंडसेट बना लिए टू हरास हिम, बार बार उसको हरास करते थे. तो स्वामीनाथन को लगता है कि पहले तो फादर ठीक थे, बट बिफोर द एग्जामिनेशन 2 वीक्स रह गए हैं, तो बिफोर द एग्जामिनेशन एज आवर पेरेंट्स चेंज, और हमारे हो जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो लाइक दिस. तो स्वामीनाथन के फादर लगता था कि मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो बहुत एंटागनिस्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए हैं, और कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं मुझे हरास करने के लिए. इफ़ द लेटर was seen chatting with his granny, he would scold, remember boy, there is an examination, your granny can wait, not your examination. Now Swaminathan, as most of the children are reluctant to studies or they don't कई टलते हैं पढ़ते, तो वैसे स्वामीनाथन का था. तो स्वामीनाथन के जो और स्वामीनाथन को सपोज अपनी दादी के साथ बातें करता देखता था, तो स्वामीनाथन के फादर जो थे ही वुड स्कोल्ड हिम, उसको डांटते थे कि रिमेंबर बॉय, योर एग्जामिनेशन कांट वेट बट योर ग्रैनी कैन वेट. मीन्स तुम्हारी ग्रैनी दादी नानी वो वेट कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन कांट वेट, सो डोंट वेस्ट योर टाइम. If he was seen wandering behind his mother, he was hunted down and set to desk. If his voice was heard anywhere after the taluk office gong had struck 9, अब क्या था, वो ज़्यादातर कभी दादी के पीछे, कभी नानी के पीछे या मदर के पीछे छुपता था, तो उसको एक आवाज़ ऐसे घूमता था, तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती थी कि स्वामी तुम अभी तक वाई यू हैव नॉट गॉन टू बेड, अभी तक तुम बेड में क्यों नहीं गए, वाई यू आर नॉट स्लीपिंग, और तब अभी भी तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो. ओके, अब बार बार अब उसके फादर जैसे बोलते हैं कि एग्जामिनेशन के बिफोर हम बोलते हैं कि वी मस्ट गेट अप अर्ली एंड वी मस्ट डू स्टडीज़, बिकॉज जो सुबह का टाइम होता है तो मोस्टली क्या होता है हम रिमेंबर अच्छी तरह कर सकते हैं और भूलते भी नहीं हैं. तो वैसे उसके फादर बोलते थे कि स्वामीनाथन डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, एंड हर टाइम उसको यही बोलते थे कि स्वामीनाथन डोंट वेस्ट द टाइम, डोंट चैट विद एनीवन, डोंट वेंडर हियर एंड देन, एंड जस्ट डू योर स्टडीज़. देन You must get up early and study a bit. अब उसके फादर क्या बोलते थे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, उठना चाहिए, and don't waste the time. This was a trying period in Swaminathan's life. One day he was piqued enough to retort. अब piqued means अब उसको क्या लगता है, बहुत irritated हो जाता है. 24 बजे से फादर उसके बार बार ये बोल रहे हैं तो irritate हो जाता है, और वो बोलता है कि, और उसको वो retort करते हैं. Retort means आंसर बैक कर दे, उसको जवाब दे देते कि वाई
वाई आर यू सो नर्वस अबाउट माई एग्जामिनेशन, क्यों मेरी एग्जामिनेशन के लिए आप इतने नर्वस हो, उसको ऐसा लगता है. देन ओके लुक एट दिस. अब स्वामीनाथन के फादर बोलते हैं सपोज यू फेल. अब ना स्वामीनाथन को बहुत गुस्सा चढ़ता है. हिपाइक्यूरस रिटोर्ट कर देता फादर को कि वाई यू आर सो नर्वस, मेरी एग्जामिनेशन को लिए तुम क्यों इतने नर्वस हो. पापा को जवाब दे देता है. तो स्वामीनाथन के फादर बोलते हैं सपोज यू फेल, अगर तुम फेल होगी तो. स्वामीनाथन को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. ही सेज आई कांट, आई वॉन्ट, मैं नहीं हो सकता फेल. स्वामीनाथन के फादर बोलते ओके, तो इफ यू डोंट फेल, ओके दैट इज़ वेरी गुड, बट इफ यू विल रीड, इफ यू विल स्टडी, देन यू कांट फेल. ठीक है, तुम फेल नहीं हो सकते, बट यू हैव टू स्टडी. स्टडी करोगे तभी तुम फेल नहीं हो सकते. अब वो उसके फादर बोलते सपोज, ओके ऑफ कोर्स यू वोंट इफ यू स्टडी हार्ड एंड आंसर वेल, सपोज यू फेल. अब फादर बोलते कि सपोज तुम फेल हो गए और तुम्हारे क्लासमेट जो है वो नेक्स्ट क्लास में चले गए और तुम्हारे जो जूनियर्स हैं वो तुम्हारे क्लास में आ गए, तब. अब स्वामीनाथन ही सैट दैट डेसिमल. स्वामीनाथन थोड़ा चुप हो जाता. फिर वो सोचता है, अब स्वामीनाथन के फ्रेंड्स के नाम है मनी, राजम. दिस सपोज पी, मनी, राजम, शंकर डेजर्टेड हिम एंड ऑक्युपाइड सेकेंड डे. अब वो बोलते हैं कि क्या, और वो दूसरी क्लास में चले गए जो तुम्हारी ये फ्रेंड्स हैं. तो तब अब उसको लगता है कि मेरे पापा जो ठीक थे, और फिर उसके पापा बोलते हैं सपोज जो तुम्हारे जूनियर्स हैं वो तुम्हारे क्लासमेट्स बन गए. तो अब स्वामीनाथन को ये रियलाइज़ होता है यस ये अगर हो गया, सपोज मैंने स्टडी नहीं की तो ऐसा हो गया. तो अब नाउ अब स्कूल का देखो. अब जब वो स्कूल में जाता है तो सब देखते हैं कि एवरीबडी, अब नेचुरली बिफोर द एग्जामिनेशन हम सभी बहुत टेंस्ड होते हैं. तो सेम वाज द केस विद स्वामीनाथन. जब वो स्कूल में जाता है देन व्हाट ही सी दैट ऑल हिज फ्रेंड्स आर वेरी बिजी, दे आर वेरी कंफ्यूज, दे आर वेरी अफ्रेड, okay, about the examination. At school, everybody seemed to be overwhelmed by the thought of the examination. Now, in this paragraph, Swaminathan's friends' mental condition has been shown, what they are doing, okay. It was weeks since anybody has seen a smile on Shankar face. अब उसका जो फ्रेंड है शंकर, तो एक वीक हो गए थे, कितने वीक्स हो गए थे कि स्वामीनाथन उसके शंकर के फेस में किसी ने स्माइल नहीं देखे थे, बिकॉज ही हैड बिकम सो सीरियस. Sonu has become brisk and businesslike. The Pete took little time to grasp jokes and seldom give out any. Okay, अब सभी का एटीट्यूड चेंज हो गया, एग्जामिनेशन सारे अप्रोचिंग हो. तो अब वो क्या बोलते हैं कि जो सोमू था बहुत तेज हो गया था और जो पी था वो बहुत कम जोक्स बोलता था और हार्डली कोई क्रैक करता था वो जोक. एंड फॉर राजम, he came to the school at the stroke of first bell and took down everything as the teacher said and left at the stroke of the last bell. अब राजम क्या करता था, जैसे बेल बजती तब आता था और जब लास्ट बेल होती थी तब जाता था. मतलब वो भी बहुत सीरियस हो गया था. मनी वॉज बिगिनिंग टू लुक वरीड. अब उसका दोस्त जो मनी था, मनी वॉज बिगिनिंग टू लुक वरीड एंड टुक एवरी अपॉर्चुनिटी टू टेक स्वामी असाइड एंड हैव हिज डाउट क्लियर्ड. अब मनी के बारे में, मनी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग करेक्टर इन दिस चैप्टर, इन दिस स्टोरी बिफोर द एग्जामिनेशन. अब मनी क्या था कि कोई टाइम नहीं छोड़ता था. स्वामीनाथन को ही टुक हिम बिसाइड, साइड में लेके जाता था और उसके साथ ही ट्राई टू क्लियर हिज डाउट्स, अपने डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता था. ओके, नाउ द मेन वन मोर इम्पॉर्टेंट करेक्टर, he dogged the steps of the school clerk. There was a general belief in the school that the clerk was omniscient and he knew all the question papers of all the class. अब क्या करता था कि जो क्लर्क था, देयर वाज अ क्लर्क, ओके, वहाँ पर एक क्लर्क था, वो क्लर्क के ही ट्राई टू फॉलो, उसको फॉलो करता था वो, बिकॉज देयर वाज अ जनरल बिलीव, कि एक बिलीव था कि जो क्लर्क है ही इज़ omniscient, she is an omniscient means one who knows everything. क्लर्क का था कि क्लर्क जो था वो सब कुछ जानता है. एक बिलीव था स्कूल में कि क्लर्क को सब कुछ पता है एंड वो क्वेश्चन पेपर्स के बारे में भी जानता है. मीन्स व्हाट वाज कमिंग इन द क्वेश्चन पेपर दैट इज नोन टू दैट क्लर्क. One day, Mani went to the clerk's house and laid a neat bundle containing fresh brinjals at his. Okay, अब एक दिन क्या होता है, मनी क्लर्क के घर में जाता है, ओके, और उसको to give him bribe, what he took fresh brinjals. वो brinjals लेके जाता है और क्लर्क के घर में चला जाता है. The clerk was pleased and took Mani in and seated him on a stool. अब क्लर्क बहुत खुश होता है, naturally brinjals were coming, so he felt very happy and उसको सीट देते हैं स्टूल में. The clerk looked extremely amiable. Amiable means friendly. अब क्लर्क बहुत उसको फ्रेंडली लगता है, तो मनी सोचता है now it is a good opportunity, I will ask him about the question paper, what is coming in the questions exams. And Mani felt that he could ask anything at that moment and get it.
द क्लर्क वॉज मर्मरिंग समथिंग अबाउट हिज कैट. ओके, अब जो क्लर्क था वो अपनी कैट के बारे में कुछ बोल रहा था कि कैट ऐसे खा नहीं रही थी, तो कैट के बारे में कुछ बोल रहा था. लेकिन जैसे वो उसको देखता है वो फ्रेंडली है तो उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है. मोस्ट ऑफ वो जो मर्मरिंग कर रहा था, वो मुंह में जो बड़बड़ कर रहा था, दैट थिंग वॉज नॉट क्लियर टू स्वामीनाथन कि वो क्या बोल रहा है, वो उसको क्लियर नहीं था. Okay, most of what he said didn't enter Mani's hand. Mani के had समझ नहीं आया. He was waiting feverishly to open the topic of the question papers. The clerk had meanwhile passed from cats to eye flies. Okay, अब मनी बहुत वेट कर रहा था कि अब ये क्लर्क जो है ही शुड स्टार्ट स्टॉपिंग, पर वो क्लर्क जो बोले जा रहा था मर्मरिंग, और जैसे उसका वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है विद कैट, तो वो आई फ्लाइज के ऊपर, ये मक्खियाँ जो घूमती हैं उसके ऊपर चला जाता है. अब मनी सोचता है, अब वो बोलता है कि जब तुम्हें आई सोर हो जाए यू शुड पोर सम फ्रेश जूस ऑफ अनियन, और ऐसा तुम जूस डालो. अब मनी सोचता है अब ये तो क्लर्क तो चुप नहीं हो रहा, अब ये यहाँ पर पहुँच गया है, ऑनियंस में पहुँच गया है, तो ही बटेड मीन्स ही इंटरफेयर्ड इन, इंटरप्टेड इन. Okay, now Mani realized that he would not stop and butted in. There is only a week more for the examination, sir. अब मनी को लगता है कि अब ये क्लर्क तो नहीं चुप हो रहा, ये अपने टॉपिक्स आगे आगे कर रहा है, तो वो एकदम इंटरफेयर कर देता है उसमें और बोलता है कि यू नो सर देयर इज़ ओनली 1 week फॉर द एग्जामिनेशन. अब मनी बोलता है क्लर्क को कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो वो एकदम बोल देता है कि सर यू नो दिस थिंग कि अब सिर्फ एक ही वीक रह गया एग्जामिनेशन के लिए. द क्लर्क वॉज स्लाइटली पजल्ड. येस इंडीड, अ वीक मोर. यू मस्ट टेक केयर टू चूज ओनली द जूसी वेराइटी, द लार्ज जूसी वेराइटी, नॉट द स्मॉल अनियन. ओके, लेकिन क्लर्क जो था वो थोड़ा उसको पजल लग रहा था, तो क्लर्क बोलता है कि येस ठीक है इंडीड रियली कि 1 week ही रहे, बट यू दिस मनी शुड यूज़ फ्रेश अनियन जूस. ओके, फ्रेश अनियन जूस लेना है, छोटे जूस वो नहीं लेना है, स्मॉल अनियंस नहीं लेने हैं. ओके, नाउ सर ओके नाउ सर मनी इंटरप्टेड, ignoring the juicy variety, I am much worried about my examination. अब वो बोलता है कि सर जूसी वेराइटी से तो नहीं, बट मैं बहुत टेंशन में हूँ अबाउट माई एग्जामिनेशन. अब वो क्लर्क को बोलता है कि क्लर्क को साथ में ये बोलता है कि सर मुझे नहीं पता पेपर में क्या आएगा, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम ऑन स्टडिंग अननेसेसरी थिंग्स दैट आर नॉट कमिंग इन द एग्जामिनेशन, एंड आई वांट टू फोकस ऑन द नेसेसरी थिंग्स, पर्टिकुलर जो थिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. और वो डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आ जाता है मनी कि सर मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता फालतू में पढ़कर, मैं वही पढ़ना चाहता हूँ दैट इज़ पर्टिकुलरली कमिंग इन द एग्जामिनेशन. ही ट्राई टू लुक पैथेटिक. अब क्लर्क क्या करता है, थोड़ा सैड लगता है. आई एम ग्लैड इफ़ यू स्टडी वेल यू विल पास. ओके, अब क्लर्क क्या बोलते हैं कि ठीक है तुम अच्छी तरह पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे. अब मनी बोलते कि सर मैं इतना आई एम सो वरीड, मैं इतना वरीड हूँ कि आई एम नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट्स, मुझे रात को नींद नहीं आती है, ढंग से नींद नहीं आती है. प्लीज़ सर अगर इफ़ यू कुछ बता दो आप मुझे इम्पॉर्टेंट, तो मुझे बहुत ज़रूरी हो जाएगा, मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्टडी यूजलेस. ओके, द क्लर्क ओके The clerk understood what he was driving at, but said, "Just read all your portions and you will pass." अब clerk, he was also clever, तो clerk समझ आता है कि what the money was saying. तो clerk क्या बोलता है मनी को कि क्या करोगी तुम, जो जो एग्जामिनेशन में आएगा you read all the portions, जो भी तुम्हें सिलेबस है उसको सारा रीड करो और तुम पास हो जाओगे. Mani realized that diplomacy was not his line. He asked bluntly, "Please tell me, sir, what questions we are getting for our examination?" अब वो क्लर्क वो सोचता है मनी कि अब तो ऐसा नहीं होगा, मुझे डायरेक्ट ही बोलना पड़ेगा. तो क्लर्क से वो बोलते हैं कि सर प्लीज़ बता दो कि कौन से क्वेश्चन जो वो एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव रेड अबाउट दिस एंड नेक्स्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Thank you students. Hello students, in our part 1 we have read the story of Mani and his friends, how his friends are worried about the examination, and particularly the story of this Mani. Okay, how he used to bribe the clerk and how he went to his house and how he bribed him. Okay, because he wanted to ask
this about his examinations. Okay, so your chapter number 6, before the examination in class 6 we are reading this thing. Your very interesting lesson before the examination. Okay, because you all are students and you know how much tension is there before the examination. You feel test, you feel restless, and most of the students are not able to sleep properly, okay, due to their examination. Now we have read this thing. Money went to the clerk house and you know this thing, he bribed him. अब मनी को realize होता है कि diplomacy is not his line और direct उससे पूछ लेता है. Okay, he asked bluntly, please sir मुझे वो questions बताओ, what questions we are getting for our examination. अब क्लर्क डिनाइड कर देता है. क्लर्क बोलता है आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द क्वेश्चन पेपर्स. अब मनी उसको बहुत फ्लैटर करता है और फ्लैटर करता है उसको बोलता है इफ़ यू डोंट नो द क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन नहीं तो हु एल्स नो, कौन जान सकता है. द क्लर्क वॉज फाइनली मूव टू गिव वट मनी बिलीव टू बी वैल्यूएबल हिंट्स. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही डिड नॉट नो द फर्स्ट फॉर्म टेक्स्ट वर द क्लर्क वेंचर्ड. अब क्लर्क लग पड़ता है उसको बताने, थोड़ा फ्लैटर करता है मनी. तो क्लर्क उसको क्या बताता है, यू मस्ट पे पर्टिकुलर अटेंशन टू ज्योग्राफी. अब नाउ दिस एडवाइस इज गिवन बाय द क्लर्क. ओके, क्लर्क इज सेइंग कि तुम पर्टिकुलर क्या करो, ज्योग्राफी को अटेंशन दो. मे बी यू विल हैव टू प्रैक्टिस मैप ड्राइंग अ लॉट. अब तुम्हें मैप ड्राइंग तुम्हें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी. अरिथमेटिक में तो तुम क्या करो, 5 प्रॉब्लम्स रोज की सॉल्व करो एंड ऐसे तुम्हारा अरिथमेटिक टैकल हो जाएगा. ओके, एज इजली एज यू स्वेलो प्लेंटेंस. ओके, जैसे तुम केले की एक वेराइटी है, दिस इज प्लेंटेंस. जैसे तुम केले को ऐसे स्वेलो करते हो वैसे अगर तुम अरिथमेटिक के रोज के 5 क्वेश्चंस यू विल ट्राई टू सॉल्व देन तो बहुत ईजी हो जाएगा. ओके, एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश. नाउ मनी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इंग्लिश में मैं क्या पढ़ूँ. ओके, अरिथमेटिक और इसमें हो गया, व्हाट अबाउट इंग्लिश. अब वो इंग्लिश में क्या पढ़े. Oh, don't worry about that. Have you read all your lessons? Yes, sir. Money replied without conviction. अब मनी क्लर्क से पूछते कि अब मैं क्या करूँ, what should I read in English? इंग्लिश में क्या पढ़ूँ. तो ये बोलता है क्लर्क रिप्लाइड, what he replied that read all the lessons. Okay, सारे lessons तुम read करो. फिर मनी से पूछते क्या तुमने सारे lessons have you read? तो बोलते yes sir, I have read all the lessons. It's all right then. You must read all the important lessons again, and if you have time yet again, and that will be ample. These answers satisfied Mani greatly. On his way up, a clerk has given advice that how he should study, what matter he should study. तो मनी को लगता है कि now he had got the valuable hints. अब वो मनी घर को चल पड़ता है. मनी को लगता है कि मुझे जो valuable hints चाहिए थे, I have got that. फिर रास्ते में जब वो जाता है वो ऐसा सोचता है कि जो मनी दैट ही वॉज इन्वेस्टेड ऑन दैट ब्रिंजल्स दैट वॉज नॉट अ वेस्ट. जब वो जो पैसे उसने ब्रिंजल्स में डाले थे जो क्लर्क को ब्राइब करने के लिए, तो इसका मतलब कि वो वेस्ट नहीं हुए. Money felt important. He secretly pitied his classmates who had to do coolie work without valuable hints to enlighten. अब मनी को लगता है कि मनी को अपने आप खुद को बहुत इंपॉर्टेंट फील करता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मुझे तो वैल्यूएबल हिंट्स मिल गया. और जो उसके क्लासमेट्स है ही फेल्ट पिटी अबाउट देम, उनके ऊपर बहुत दया करता है बिकॉज दे वर डूइंग वर्क एज अ कुली, बहुत वर्क कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे. और मनी रियलाइज कि उसको तो हिंट्स मिल गए और वो उसी को ही पढ़ेगा. ओके, दे वर गोइंग. अब वो स्कूल से घर जा रहे थे तो वहाँ पर बिफोर पार्टिंग स्ट्रीट्स तो मनी उसको बोलता है स्वामीनाथन को कि स्वामीनाथन कि तुम्हें कोई आइडिया है कि व्हाट इज कमिंग गेटिंग इन द एग्जामिनेशन. अब मनी के वो स्वामी नथिंग आउटसाइड द कवर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक. स्वामी इग्नोर द ह्यूमन. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. लास्ट नाइट फ्रॉम 7 डिड यू नो व्हाट. अब वो मनी, अब स्वामी ये मनी जो खुद को बहुत फील करता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, तो स्वामीनाथन को बोलते हैं कि स्वामीनाथन डू यू नो, तुम्हें पता है कि पेपर में क्या आएगा. अब बाहर से तो कुछ नहीं आएगा. तो मनी बोलता है, स्वामीनाथन बोलता है ओके तुम्हें पता है मैंने कल रात को क्या किया. Munch groundnuts, okay. Idiot, I don't joke. I have made 2 maps of India, 2 of Africa, 1 map. अब मनी क्या वो बता रहे कि मैंने how he had studied, how he is preparing for his examination. Yes, all the maps in the atlas. Maybe Mani said. अब क्लर्क ने उसको जो हिंट दिया था, एक्चुअली क्लर्क ने जो हिंट दिया था उसको पूरा ही सिलेबस उसने बोल दिया था पढ़ने के लिए, बट वो मनी को इतना पर्टिकुलरली समझ नहीं आया. तो मनी क्या बोलता है कि मैंने 2 मैप्स इसके किए, 2 मैप्स उसके किए. तो स्वामीनाथन बोलते हैं, सीधा बोलते कि तुमने एटलस के सारे मैप्स किए. मे बी मनी सेड बट फॉर अ डेफिनेट पर्पस. ओके, अब
रीचिंग होम, अब स्वामीनाथन को बहुत डर लगता है जब वो घर में पहुंचता है, बिकॉज हिज मदर वॉज नॉट देयर, और ग्रैनी जो थी वो भी बोलने के मूड में नहीं थी. नाउ ही रिलेटेड टू सम, उसको कुछ एक्साइटिंग इंसिडेंट्स बताता है उसके, पर वो देखता है कि ग्रैनी जो है वो मूड में नहीं है बोलने के. फिर क्या करता है, वो अपने छोटे ब्रदर की तरफ चल पड़ता है. जो छोटा जो ब्रदर था वो सोया हुआ था, ओके, पर वो थोड़ी सी आवाज़ से उठ पड़ता था. तो स्वामीनाथन क्या करता है, वो क्या करता, अपने गले को खराश करता, थोड़ी खांसी करता, बट जो छोटा बच्चा था ही वॉज नॉट अवेकनिंग, वो सोया हुआ था, ओके. और फिर जब पहले आता है वो बहुत डिसअपॉइंटेड था बेबी स्लिप के, बट जो भी करता है वो बेबी जो था वो नहीं उठता है, ओके. Okay, staying at home in the evenings was extremely irksome. He sighed at the thought of the sandbank of Saryu and Mani's company. पर वो सोचता है कि मैं वहाँ जाता हूँ सरयू के किनारे, पर उसके फादर ने मना किया था कि जब तक तुम्हारी एग्जामिनेशंस हैं तुम बाहर नहीं जाओगे. But somehow when one came near to doing it, one failed. Okay, now अब यहाँ पर आते हैं. Okay, he sat at his table and took out his atlas. He opened the political map of Europe and sat gazing at it. It puzzled him how people managed to live in such a crooked country as Europe. अब ना मैंने स्वामीनाथन क्या है, एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो फटाफट वो क्या करता है, एटलस निकालता है. एटलस में देख वो पॉलिटिकल मैप निकालता है यूरोप का, और लोग देखते उसको बहुत ध्यान से, वो बहुत पजल होता है कि क्यों पीपल ऐसी ऐसी क्रुप्ड कंट्री में, यूरोप जैसी क्रुप्ड कंट्री में कैसे रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं. He wondered what the shape of the people might be who lived in places where the outline narrowed as in a cape, and how they managed to escape. Okay, and then ओके, अब उसको बहुत ये फील होता है कि ये लोग कैसे रहते होंगे ऐसी कंट्रीज में जिनकी बाउंड्रीज ऐसे क्रुप्ड हैं. और फिर वो सोचता है कि मैप में पर जो मैप बनाते हैं उनको कैसे पता चला होगा कि किस कंट्री की क्या शेप है. अब यूरोप की क्या शेप है, दूसरे की क्या शेप है, कॉन्टिनेंट्स की क्या शेप है. तो वो बहुत पजल होता है कि ये कैसे वो जो मैप मेकर्स हैं वो कैसे उसकी जो शेप है उसको फाइंड आउट करते हैं. तो वो सोचते हैं उनको कैसे फाइंड आउट किया कि यूरोप जो कैमल की हेड की तरह है. ओके, तो वो सोचता है कि शायद वो ऊंचे ऊंचे टावर्स में बैठ जाते होंगे, और फ्रॉम टावर्स वो क्या करते होंगे, प्रोबेबली दे स्टूड ऑन द हाई टावर्स एंड कॉपीड इट व्हाट दे सॉ बिलो. अब वो सोचते हैं कि हो सकता है वो ऊंचे ऊंचे टावर्स में बैठ जाते हो, जो उनको दिखता है उसको कॉपी कर लेते होंगे. ओके ओके, उसने क्या किया, फिर यूरोप के मैप की कॉपी बना ली. ओके, now, 2 days before his examination, he sat down to draw up a list of his needs. अब 2 days रह गए एग्जामिनेशंस को, तो हम करते हैं ना कि क्लिपबोर्ड चाहिए, पेन चाहिए, रूलर चाहिए, एवरीथिंग वी नोट डाउन. तो वैसे ये क्या करता है, 2 days before the examination बैठ जाता है और अपनी नीड्स जो उसकी ज़रूरत थी उसको लिखना स्टार्ट कर देता है. With a lot of thought he wrote and rewrote the list. At the end the list was corrected too. अब लिस्ट को बार बार वो इरेज करता है, फिर बनाता है, और लास्ट में फिर एक और लिस्ट बना देता. और लिस्ट में क्या था, क्या चाहिए था, अनरूल्ड वाइट पेपर, रूल्ड वाइट पेपर, ब्लैक इंक जो उसको चाहिए थी. ओके, नॉट सेटिस्फैक्ट्री इवन नाउ. ओके, व्हाट इज हैपनिंग. ओके, पिन्स, क्लिप्स, पिन्स और ये सब कुछ जो है ये ओके. नाउ अब वो लिस्ट बना रहा है, लुक हाउ मनी इज थिंक, मनी सोच रहा है मुझे पेपर करने के लिए क्या क्या चाहिए. फिर क्लिप्स, पेन्स, द लिस्ट वॉज, ये लिस्ट उसकी बन गई. रूलर चाहिए, क्लिपबोर्ड चाहिए, पेन्स चाहिए, पिन्स चाहिए, इंक चाहिए. ठीक है, ये इसने लिस्ट बना ली कि मुझे पेपर के लिए क्या क्या चाहिए. अभी वो सेटिस्फैक्ट्री था, पॉन्डरिंग बहुत सोचता है लिस्ट के बारे में अगेन एंड अगेन. फिर वो कार्ड, वो पैड, पेन, ऐसे वो लिस्ट बनाता है. ओके, स्वामीनाथन stood before him with the list in his hand. Okay, अब स्वामीनाथन क्या है, लिस्ट तो बना बैठा, लेकिन लिस्ट जो फाइनलाइज होगी वो उसके फादर के उस अकॉर्डिंग होगी. तो अब वो लिखता है कि 1 rupee फॉर एडिशनल एक्सपेंस. अब वो सोचता है कि 1 rupee मुझे एक्स्ट्रा खर्चों के लिए 1 रुपया वहाँ भी मुझे लेना है. हिज फादर वॉज बिजी इन हिज ऑफिस. लुक एट हिज फादर हाउ टेरिबल ही इज लुकिंग, कितना लग रहा है ये खतरनाक. तो उसके फादर जो था वो बिजी था. अब स्वामीनाथन उसके आगे आ जाता है विद द लिस्ट, उसके हाथ में वो लिस्ट होती है. देखिए, फादर इतने वर्क में एब्जॉर्ब थे तो उनको नहीं लगता पता कि स्वामीनाथन वॉज देयर.
स्वामीनाथन suddenly realized that it would be better to approach his father at some other time. अब स्वामीनाथन देखते हैं कि उसके पापा तो बहुत बिजी हैं अपने ऑफिस में, तो वो सोचते हैं मैं थोड़ी टाइम के बाद I will approach him later on. He could be sure of a better reception if he opened the question after 4. He tiptoed out. Tiptoed means चुपके से बाहर निकल जाना. अब वो चुपके से सोचता है कि ठीक है पापा बहुत बिजी हैं, मैं उनको बाद में कंसल्ट करूँगा, और सबसे अच्छा ये होगा कि जब मैं ये जो मेरा क्वेश्चन है खाना खाने के बाद पुट करूँ. When he was just outside the door, और जैसे वो दरवाजे के बाहर निकलने लगता है तो उसके फादर जोर से चिल्लाते हैं, Who is that? कौन है यहाँ पर? क्या यहाँ पर? तब कोई फ्रेंडलीनेस नहीं होती, मीन्स थोड़े रूड थे, तो उनकी जो टोन थी थोड़ी रूड थी. Who is it? वट ऐसे. अब पापा उसको फिर से बोलते कौन है, और उसका फेस बहुत स्कॉलिंग होता है, और फिर जोर से बोलते कि क्या तुम हो? ये स्वामीनाथन बोलता है यस मैं हूँ. अब वो उसके पापा उसको डांटते हैं तो तुम क्यों आए थे? क्या इस घर में कोई भी शांति से नहीं रह सकता है? मैं यहाँ काम में बिजी हूँ, और हर 5 सेकेंड में कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई फूल ऐसा आता है और ऐसे क्वेश्चंस पूछता है. ओके अब स्वामीनाथन को पूछता है पापा उसके, व्हाट इज़ दैट इन योर पेपर इन योर हैंड. अब स्वामीनाथन के पापा बोलते कि तुम्हारे हाथ में क्या पेपर है? नथिंग फादर. स्वामीनाथन आंसर करता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है. और फिर धीरे से वो बोलता है, स्वामीनाथन हैड टू कफ ट्वाइस टू फाइंड इट इज माई एग्जामिनेशंस लिस्ट. अब वो थोड़ा डरता था पापा से, और वे बोलता है कि मेरी एग्जामिनेशन लिस्ट है. पापा बोलते हैं क्या एग्जामिनेशन लिस्ट है? ओके अब वो बोलते हैं कि मेरे एग्जाम्स जो हैं दे आर स्टार्टिंग. ओके एंड येट यू आर वेंडरिंग अबाउट द हाउस लाइक एन अनलिश्ड डंकी. अब वो उसके पापा बोलते हैं कि अब वो पापा को बोलते हैं इट इज़ माई एग्जामिनेशन लिस्ट, और पापा बोलते हैं ठीक है ये एग्जामिनेशन लिस्ट तुम्हारी दो दिन के बाद तुम्हारी एग्जाम्स है, और तुम ऐसे छोड़े हुए एक जानवर की तरह तो घूम रहे हो. What procedure list is this? Or do you think rupees, annas and pies drop from the sky? स्वामीनाथन did not think so. अब उसके पापा बहुत गुस्सा होते हैं. उस पापा बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये बेकार की लिस्ट है? तुम्हें क्या लगता है ये पैसे मनी आनाज जो होते हैं ये स्काई से आते हैं, आसमान से? बस अब पापा लेते हैं उसको और ड्रॉर में फेंक देते हैं उस लिस्ट को. अब पापा लिस्ट को कर रहे हैं, उसको अल्ट कर रहे हैं. जैसे देखो यू कांट टेक एनीथिंग. तुम जो भी चीज़ है जो लेना चाहते हो मेरे से ले सकते. आई डोंट हैवंट गॉट क्लिप्स, यू डोंट नीड दैम. एंड देन द पैड, वाई यू नीड. तुम्हें पैड क्यों चाहिए? तुम्हें ये क्यों चाहिए? तुम्हारे के स्कूल में क्लास में रूम्स नहीं होते, रूम्स में डेस्क नहीं होते, तो तुम्हें क्यों क्लिप बोर्ड चाहिए? ओके इन आवर डेज, हमारे डेज में स्लेट्स अच्छी होती थी, और अब बट नाउ यू वांट पेन पेपर इंक एंड पैड टू कीप अंडर द पेपर. अब फिर वो लिस्ट को निकालता और उनको कट करता चलता है, स्वामीनाथन की तरफ फेंक देता है. अब स्वामीनाथन को बहुत दुख होता है, क्योंकि स्वामीनाथन ने सोचा था कि पापा मुझे पैसे दे देंगे और मैं पॉकेट में डाल को जिंगलिंग करते करते मैं जाऊंगा, लेकिन फादर क्या करते हैं उसकी पूरी लिस्ट को खराब कर देते हैं. He was just going out when father called him back and said, "Here boy, as you go." Okay. अब in the last we see अब पापा उसकी लिस्ट को कर देते हैं, ऑल्ट उसकी लिस्ट को चेंज कर देते हैं, और पापा क्या बोलते हैं कि जाओ तुम जा रहे हो रूम से बाहर तो अपनी मदर को बोलो कि बच्चे को उठाओ, बिकॉज मैं बहुत बिजी हूँ और इस घर में बहुत बिजी हूँ, और वो कब बच्चे को उठाएगी जब वो बेहोश हो जाएगा. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ स्वामीनाथन, his examinations, his friends and his father. Thank you students.